Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. So today we are going to discuss about the Indian 5-year plans, which have greatly impacted the cooperative movement so far. But this is a very theoretical part of the course. So you have to be patience. You have to show some patience because most of the things in this part are theoretical. As far as your exam is concerned, the questions from this part, because this is the lengthiest part of your course. I'm saying this as a lengthiest part because you have to keep in mind the 5-year plans, because the time period we are talking about is roughly 60 years. So what was the government's orientation in these 60 years as far as the planning is concerned? So that is why this chapter will take time, and also there is lots of theory which you have to hear, and then you have to go back and attend the lecture again and again, so that you can get acquainted with the changes which are happening in the cooperative movement as far as the planning is concerned. Okay, because after which when we will complete this, you will have complete knowledge about the cooperative movement which is happening in India, or which is currently going on. And after that we will jump to your last topic, that is your JNK acts which we have to study. So this is the most lengthiest part of your course, where you have to be patient, because you have to show some patience and you have to be attentive, because the most of the part in this chapter is of theory, and you have to read it, you have to listen to the quotations what I'm saying, and as far as possible you have to be quick in writing on your own, that whatever you find it important. Because when we talk about 5-year plans, तो उसमें एक चीज ये भी है कि जब हम 5-year plans की बात करते हैं, तो हमको ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया में जब हम 5-year plans की बात करते हैं, तो 5-year plans में सबसे बड़ी चीज ये है कि 5-year plans में कोऑपरेटिव्स को एज अ होल लेके चला जाता है। मतलब उसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ रूरल क्रेडिट की बात कर रहे हैं, या हम सिर्फ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, हम हर एक चीज की बात कर रहे हैं। और जो फर्स्ट 5-year प्लान है, वो ज्यादातर उसमें थ्योरी है, उसमें फैक्ट्स इसलिए कम है क्योंकि फर्स्ट वाले से हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वाले से हम शुरू कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो उसमें हमारे थ्योरी और प्रिंसिपल्स थोड़े ज्यादा होते हैं। सेकेंड 5-year प्लान ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड लिटिल इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज सेकेंड 5-year प्लान तक आते आते गवर्नमेंट के पास डेटा होगा, जिस डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो जो भी उनका आउटलुक है वो उसको डिजाइन करेंगे। क्योंकि डेटा आज की तारीख में, या हर कभी भी आप जब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं, तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डेटा द इकोनॉमिक द क्वेश्चन ऑफ वेदर वी आर डेवलपिंग और नॉट, इट हैज ऑफ नो यूज। ठीक है ना। तो that is the reason that in this part you have to understand this, because after that there are only two things that you have to read related to your economy. One is RBI, the role of RBI, and second is NABARD. After that we will jump to your the acts which are given in your course. So जब हम 5-year प्लान की बात करते हैं, तो we will going to start with our first FYP. ठीक है ना, we are going to start with our first FYP,
which started from 51 and ended in 56. Now, whenever we are talking about a 5-year plan, you have to keep in mind that today we don't have 5-year plans because today we don't have planning commission. ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो हमारे यहाँ पे था उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया जब ये regime change हुआ सेंटर पे after the new government came into power in 2014 under the leadership of Narendra Modi. This planning commission was abolished. Now since this planning commission has been abolished, you won't find any new 5-year plans. तो हमारे यहाँ पे अब जो 5-year plans है वो नहीं है. इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लान्ड इकोनॉमी के अपने एक फायदे भी होते हैं, अपने नुकसान भी होते हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में प्लान्ड इकोनॉमी के फायदे ज्यादा थे, नुकसान कम थे. बट वो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है लीडरशिप के. और मुझे ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो क्वालिटी है गवर्नमेंट का वो गिरता ही चला जा रहा है. तो वी आर फेसिंग दीज सिचुएशंस. हमारे यहाँ जो ये रेगुलर क्राइसिस होने लगा है उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि हमारी गवर्नमेंट की कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई. अब इसको आप 5-year प्लान शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो होती है वो एक रिले रेस की जैसी होती है. गवर्नमेंट जो है वो रिले रेस की जैसी होती है. रिले रेस का मतलब क्या होता है कि आपको जब आपकी रेस में भागने की बारी आई तो यू हैव रन योर 100 meters. ठीक है, नीति आयोग राफिया does not have the powers as of planning commission. Niti Ayog is only a think tank working for the central government. They work with different government departments, they work with different state governments, they bring some reports, but they don't have such powers, especially the financial powers that were given to the planning commission. ठीक है, तो नीति आयोग is simply a think tank or you can say a advisory council for the government, but other than that they don't have such powers as they were given to the planning commission. So that is you should have to keep in mind. तो जब हम सरकार की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इज अ रिले रेस. रिले रेस का क्या मतलब होता है? रिले रेस का मतलब है कि अगर 400 मीटर की रेस है तो इट विल बी 400 मीटर की अगर रेस है तो ये होगा 100x4. यानी कि हर एक जो पार्टनर है, 4 लोगों की टीम होगी, हर बंदा जो है वो 100 मीटर भागेगा और ये 4 लोग 100 मीटर भागेंगे तो ये 400 कंप्लीट हो जाएगा. ना गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2014 में पावर मिला तो आपको यहां से देश को आगे ले जाना है. 2019 में अगर पावर चेंज होगी तो जो सरकार आएगी उसको यहां से देश को आगे ले जाना है. साइमल्टेनियसली 24 और इसको आप ऐसे खींच लीजिए 2009, फिर इसको ऐसे ले लीजिए ये 2005, 2004. तो ये एक रिले रेस है. अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे यहाँ जैसे ही रिजीम चेंज होता है, अब जैसे 2014 में रिजीम चेंज हुआ तो ये 14 वालों ने पहले तो अपने 2-3 साल इसलिए वेस्ट कर दिए कि पिछली सरकार ने जो जो किया है हम उसको पहले कैंसिल करेंगे, फिर हम अपना नया काम करेंगे. तो होता क्या है कि जो एक सिस्टम में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी ना होने की वजह से इंडिया को 3 चीजों में बहुत प्रॉब्लम होती है. एक, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग जो सरकार बदलने के बाद फिर से जीरो से शुरू होती है. दूसरा, हमारी फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है. और दूसरा, हमारा इंटरनल पॉलिसी. ये 3 चीजों में हमको बहुत दिक्कत होती है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो लॉन्ग टर्म गेम होता है. अब अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो इकोनॉमिक मॉडल चेंज हो जाएगा. गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाएगी. गवर्नमेंट चेंज हो गई, इंटरनल पॉलिसी चेंज हो जाएगी. तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक डेवलपमेंट शुरू होता है वो कहीं ना कहीं हिंडर होता है. तो ये चीजें आपको याद रखनी है जब आप पढ़ते हैं चीजों को कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो आप स्लो ग्रोथ देते हैं या हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई मतलब कॉज है वो यही है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है उसका क्वालिटी गिरता चला जा रहा है. क्वालिटी से मतलब ये नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, नहीं. क्वालिटी का मतलब द टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग. तो जो कंटेंट है, कंटेंट का क्वालिटी गिरता चला जा रहा है. तो कंटेंट का क्वालिटी गिरने से क्या हो रहा है
कि हमारे यहाँ पे कॉस्मेटिक या सुपरफिशियल चेंजेस पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव चेंजेस हैं, जो गवर्नमेंट, हर किसी गवर्नमेंट को करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट करती भी है कभी कभी, उस पे हम बात नहीं करते और हम कॉस्मेटिक या सुपरफिशियल चेंजेस की बात करते हैं। हम पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, हम पॉलिसीज के अनाउंसमेंट्स पे ध्यान देते हैं। तो वहां से कहीं ना कहीं हमारा मॉडल गड़बड़ा जाता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट के केस में भी जब हम आजाद होते हैं तो पहला जो 5 ईयर प्लान है, उसने क्या किया, उसने सबसे पहला काम तो ये किया कि उसने एक आउटलाइन दिया। उसने क्या किया, उसने एक आउटलाइन दिया कि हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट का विजन क्या होगा। आउटलाइन द डिटेल ऑफ द विजन। इंडिया का विजन क्या है कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेके, विजन फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट, कि हमारा कोऑपरेटिव्स को लेके विजन क्या है। तो पहला जो कंट्रीब्यूशन 5 ईयर प्लान का ये है कि पहले 5 ईयर प्लान में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को किस तरीके से हमें आगे ले जाना, उसके लिए हमारा विजन क्या होना चाहिए और किस तरीके से पंचायत्स एंड कोऑपरेटिव्स कैन प्ले। एक विजन का एक हिस्सा ये भी था कि पंचायत्स एंड कोऑपरेटिव्स कैन बी दी बियरर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दो चीजों पे हमें काम करना है। तो पहले 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट के ने एक तो अपना हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट का विजन क्या होना चाहिए उसके बारे में बात की, और उसके साथ साथ उसने बात करी कि किस तरीके से पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हाउ टू अडॉप्ट। दूसरी बात जो ये 5 ईयर प्लान करता है वो ये है कि एडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव मेथड, एडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव मेथड टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। किस तरीके से हम कोऑपरेटिव मेथड का इस्तेमाल करके कम्युनिटी डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट को हम किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए क्या किया गया, इसको करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने बोला कि हर तरीके की कोऑपरेटिव सेटअप होनी चाहिए। तो प्लान सपोर्टेड दी सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव्स रिलेटेड टू हर तरीके की, नॉट जस्ट रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होने चाहिए। ये पहले ही 5 ईयर प्लान में उन्होंने आउटलाइन कर दिया कि कोऑपरेटिव्स का जो विजन है उसका इस्तेमाल हमें हर चीज में करना है, वो चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हो अर्बन सेक्टर में, वो चाहे इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स हो वर्कर्स के लिए, वो चाहे आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हो। आपको याद होगा कि कोऑपरेटिव्स जो हैं वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स से ही शुरू होते हैं। ठीक है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हो। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम रूरल कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं। इस 5 ईयर प्लान में ही गवर्नमेंट ने एक चीज क्लियर कर दी कि हमें कोऑपरेटिव मेथड का इस्तेमाल कम्युनिटी डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट में करना है, और उसको करने के लिए अगर हमें लगता है तो हम हर तरीके के कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देंगे, अर्बन, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, हाउसिंग, हर तरीके से। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम गवर्नमेंट ने बनाया वो था कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कोऑपरेटिव्स को बेहतर बनाने के लिए हमें किस तरीके से एजुकेशन और ट्रेनिंग पे काम करना है, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम किस तरीके से
the government departments must be incentivized. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हमें इंसेंटिवाइज करना है टू फॉलो पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग अप कोऑपरेटिव्स। किस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो अपने अंडर कोऑपरेटिव्स के को बेहतर तरीके से बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये 6 चीजों पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक विजन दिया गया, ठीक है ना। विजन जो है वो ये 6 5 ईयर प्लान, ये मोटा मोटा विजन ये दिया गया कि हमें हर तरीके की कोऑपरेटिव्स को बनाना है। और इंडिया में जो हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेके आजादी के बाद क्या विजन होगा वो आपके पहले 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने आउटलाइन किया। पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स को हम किस तरीके से एक प्रिफर्ड मीडियम के तौर पे उठा सकते हैं फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कोऑपरेटिव मेथड को किस तरीके से हम अपने कम्युनिटी के हर एस्पेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके लिए हम चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स बनाएं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स बनाएं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बनाएं, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स बनाएं, जिस तरीके से भी हमें काम करना है एग्रीकल्चर में, रूरल इंडिया में या अर्बन इंडिया में, उसके लिए हमें किस तरीके से प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। और ये गवर्नमेंट ने खुद ही बीड़ा उठाया। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल बताया भी था कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई और उसको टास्क दिया गया कि आपका काम ये है कि आप नेशनल लेवल पे ऐसी फैसिलिटीज बनाइए जहां पे हम कोऑपरेटिव पर्सनल्स को एजुकेशन और ट्रेन करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी ये जिम्मेदारी डाली गई कि आपका काम है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज बनाइए जिनके थ्रू हम आपके डिपार्टमेंट्स के अंडर आने वाले जो वेरियस कैटेगरीज ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं उनको बनाने में हेल्प कर सके। तो जो पहला 5 ईयर प्लान है उसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि उसने आपको एक विजन प्रोवाइड किया, ठीक है ना, विजन प्रोवाइड किया। क्योंकि अगर आप अपने कोऑपरेटिव हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज 1904 में एक एक्ट आया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसको 1912 में अमेंड करके उसमें एक चेंजेस लाया गया कि भाई आप क्रेडिट के अलावा और भी सोसाइटीज खोल सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ, इनिशियली धीरे था डाइवर्सिफिकेशन उतना तेजी से नहीं हुआ कॉलोनियल एरा में, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें आप देखते हैं कि हमारा जो कोऑपरेटिव्स का पूरा ग्रोथ है वो बढ़ता है। खास तौर पे वर्ल्ड वॉर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए इंडिया में, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था हमारी जो खास तौर पे हमारा जो मास्टर इकोनॉमी था यानी कि ब्रिटेन का। तो वहां पे क्योंकि काफी सारा प्रोडक्शन का बंद हो गया था और उसके कंपैरिजन में इंडिया में अभी भी प्रोडक्शन चल रहा था, तो उसको बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव्स में एक तरीके से एक नया बूस्ट आता है आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और उसमें भी आप ये रियलाइज करेंगे कि कोऑपरेटिव फॉर्म को एक सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं माना गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चेंज ये आता है थिंकिंग में कि अभी तक क्या था कि अभी तक अगर आप कोऑपरेटिव हिस्ट्री अपनी देखेंगे जो हमने अभी डिस्कस भी करी है, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर कोऑपरेटिव्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। वर्कर्स ने मिलके बना ली, फार्मर्स ने मिलके बना ली, कंज्यूमर्स ने मिलके बना ली। अभी क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि इंडिया में भी ये रियलाइजेशन होता है कि कोऑपरेटिव्स कैन नॉट बी ट्रीटेड ओनली अ स्पीशी ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर। उसको हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के स्पीशी के तौर पे नहीं देख सकते, हम उसको उसका इस्तेमाल इकोनॉमिक प्लानिंग में भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। मतलब गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव मेथड्स का इस्तेमाल कर सकती है फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी तक क्या होता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक, 1940 से पहले क्या होता था कि ज्यादातर कोऑपरेटिव्स जो थे वो प्राइवेट सेक्टर में होते, क्योंकि कोऑपरेटिव्स का आइडिया ही ये है कि यू आर वर्किंग विद इन योर कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट भी उसको एज अ प्राइवेट एंटिटी लेके चलती थी, क्योंकि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्लानिंग में कोऑपरेटिव्स बहुत ही लिमिटेड या बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करते थे। इट इज ओनली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर में जो इम्पैक्ट आया हमारी इकोनॉमी में और वर्ल्ड वॉर के बाद जो चीजें चेंजेस होती हैं उसमें एक सबसे बड़ा चेंज ये आया,
और इसका इम्पैक्ट भी आपको अपने पहले 5 ईयर प्लान में दिखता है कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव्स को एक इंपॉर्टेंट मीडियम के तौर पे खुद ही उठाया, रेदर देन पुटिंग इट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कि आप कोऑपरेटिव्स को बूस्ट करो। गवर्नमेंट खुद ये चाह रही है कि हम भी कोऑपरेटिव्स का इस्तेमाल करें। तो यहां से जब भी किसी सेक्टर को या जब भी किसी पॉलिसी को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, वहां से उस सेक्टर या उस पॉलिसी के लिए आगे का रास्ता आसान हो जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कोई कंपनी खोली है, लेट्स से मैंने कोई इंस्टीट्यूट खोला, वो इंस्टीट्यूट मेरा अपना है, प्राइवेट है, तो उसको बनाने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए जो भी पाथ में प्रॉब्लम्स आएंगी उसको मुझे खुद सॉल्व करना है। आप बैंक कंपेयर कर सकते हैं, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है। अभी आईसीआईसीआई बैंक का जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो प्राइवेट ओनरशिप में है। तो अगर उस बैंक में कोई प्रॉब्लम होती है, उस बैंक के कस्टमर्स अगर हैप्पी नहीं है या उस बैंक में डिफॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक का जो पब्लिक में एक एक्सेप्टेंस है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट एंटिटी है जिसमें लोगों को पता है कि अगर ये ज्यादा नीचे जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप एसबीआई को देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप देखें, तो हो सकता है कि एसबीआई का प्रॉफिट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक से कम हो, या एसबीआई का घाटा आईसीआईसीआई से ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी लोग जब ट्रस्ट की बात आती है तो आप एसबीआई पे ट्रस्ट करते हैं या गवर्नमेंट बैंक पे ट्रस्ट करते हैं। रीजन क्या है? उसके साथ गवर्नमेंट का नाम जुड़ा हुआ है, उसके साथ गवर्नमेंट की श्योरिटी जुड़ी हुई है। तो उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर सेक्टर को या उस पर्टिकुलर एंटिटी को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। ब्रीदिंग स्पेस क्यों मिल जाता है? क्योंकि उसके लिए बल्क ऑफ द काम जो है वो सरकार खुद कर देती है कि भाई एसबीआई को फंड्स का जरूरत है, आईसीआईसीआई बैंक को फंड का जरूरत है, वो प्रॉपर्टी बेचेगा, आरबीआई से लोन लेगा। एसबीआई को अगर फंड चाहिए, इन्फ्यूजन चाहिए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना एक क्रेडिट और डेबिट का एक रेजोल्यूशन लेके आना है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है बजट एलोकेशन से एसबीआई में पैसे डायरेक्टली इन्फ्यूज कर सकती है। तो ये जो एक बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में इन्वॉल्व होने का, वो बेनिफिट कोऑपरेटिव्स को पहले 5 ईयर प्लान से मिलना शुरू हुआ। और क्यों मिलना शुरू हुआ? वो इसलिए मिलना शुरू हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक आउटलुक था वो चेंज होता है, और उस इकोनॉमिक आउटलुक के चेंज होने की वजह से वो चेंजेस आपको हमारे यहाँ पे भी दिखते हैं, वो चेंजेस आपको हमारे यहाँ पे भी दिखते हैं। तो क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन जो हमारी कोऑपरेटिव्स का है वो आपको पहले 5 ईयर प्लान में ही दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज का ही नंबर बढ़ रहा है, हर तरीके के क्रेडिट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, फार्मिंग, इरिगेशन, कंसोलिडेशन, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स, लेबर सोसाइटीज, हर तरीके की कोऑपरेटिव्स जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन इसमें भी आपको ये याद रखना है कि टोटल जो कोऑपरेटिव्स थी उसमें से अभी भी 80% जो कोऑपरेटिव्स थी वो एग्रीकल्चर सोसाइटीज थी। ठीक है ना। जितनी भी क्रेडिट सोसाइटीज थी या जितना भी कोऑपरेटिव्स था, उसमें अभी भी मेजर चंक जो था वो एग्रीकल्चर का था। 80% जो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स थी दैट वर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो इनका मेजॉरिटी तो है, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं, मतलब जो अदर कोऑपरेटिव्स हैं, उनको भी स्टेडी राइज उनका हो रहा है। स्टेडी राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट हर तरीके के कोऑपरेटिव्स को प्रमोट कर रही है। अब प्रमोशन कैसे कर रही है? प्रमोशन कर रही है फंड्स दिला के, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फंडिंग का है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि क्रेडिट कहाँ से आएगा। तो अगर गवर्नमेंट आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है तो आपके लिए कोऑपरेटिव्स को मैनेज करना और उनको चलाना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये फायदा आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही आपको ये दिखना भी शुरू हो जाता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है चीजों को लेके आगे बढ़ रही है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो ये थी वो ये थी कि कोऑपरेटिव्स के साथ पंचायत को भी ऐड किया गया रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो शुरू से ही गवर्नमेंट का एक एजेंडा था कि आगे चल के पंचायत जो है दे आर गोइंग टू प्ले अ इंडिस्पेंसिबल रोल इन रूरल इंडिया। पंचायत जो है दे आर गोइंग टू प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन रूरल इंडिया।
और उसको हमने किस तरीके से कोऑपरेटिव्स के साथ मर्ज करना है, दैट वाज द वर्क व्हिच वाज डन बाय द गवर्नमेंट, कि किस तरीके से हम पंचायती राज सिस्टम को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ विलेज कोऑपरेटिव्स, थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ विलेज कोऑपरेटिव्स, कि हम किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन है, तो पहले 5 ईयर प्लान से ही एक चीज थी कि प्लानिंग कमीशन was in constant touch, planning commission was in constant touch with the RBI, या आप ऐसे लिख सकते हैं with the states, RBI के साथ, स्टेट्स के साथ, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल यही था। और दूसरी चीज, आरबीआई को ये स्पेशल टास्क प्रोवाइड किया गया था बिकॉज आरबीआई वाज टू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, was to formulate, to provide specific programs. फॉर्मुलेट की जगह आप ये लिख सकते हैं कि टू प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, कि किस तरीके से हम कोऑपरेटिव्स को फर्दर प्रमोट कर सकते हैं। और उसके लिए आरबीआई को ये जिम्मेदारी दी गई कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड डिफरेंट मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन हैव अ अपडेट इन दी कोऑपरेटिव्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा सबसे बड़ा जो चीज इस पूरे 5 ईयर प्लान में हुआ, वो ये था कि गवर्नमेंट स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन कोऑपरेटिव्स एंड पंचायत्स। तो उन्होंने 5 ईयर प्लान में सिर्फ ये विजन नहीं दिया, उन्होंने इस पे काम करना भी शुरू किया, काम करना भी शुरू किया। और वो काम कैसे कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें इनके बीच में बैलेंस बनाना है। अभी आपको इनिशियली इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी समझ नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इस बैलेंस को आगे चल के when you will review, when it will be reviewed, you will understand what was the impact. जब आप सेकेंड या थर्ड या फोर्थ 5 ईयर प्लान में जब हम रिव्यू करेंगे डेटा का, then you have to understand the importance, कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंस है। देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है कि जब हम विलेज प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीज होती है टारगेट्स बनाना, उसके साथ साथ सस्टेनेबल मेथड्स उन टारगेट्स को अचीव करना। ठीक है, और उसके लिए जरूरी है कि किसी भी प्लान के लिए विलेज लेवल पे सक्सेस होने के लिए जरूरी है एक कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन गांव के लोगों का। ठीक है, गांव के लोगों का कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे होगा? ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर मोर देन विलिंग टू एस्टैब्लिश पंचायती राज, क्योंकि अभी आपको ये याद रखना है कि जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो पंचायती राज अभी जो है वो स्टेट्स के हाथ में है। सेंटर की तरफ से किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी अभी नहीं है पंचायत के पास, वो स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन स्टेट्स भी विलिंगनेस शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पंचायत हैव टू प्ले अ इंडिस्पेंसेबल रोल इन दी रूरल एरियाज, क्योंकि बिना लोकल गवर्नमेंट के, बिना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूरल इंडिया में चेंजेस आने बहुत मुश्किल है। और उसके लिए जरूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है सोशल रिफॉर्म्स का, उनको जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक वेल सेटल्ड लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, खास तौर पे जब हम ग्रास रूट्स की बात करते हैं, जब हम ग्रास रूट्स की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीजें आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट करती हैं उसका आपके सेंट्रल या लोकल या स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। आपको जो इमीडिएटली इम्पैक्ट करने वाली चीजें होती हैं वो या तो आपकी म्युनिसिपैलिटी के हाथ में होती हैं या तो आपको पंचायत के हाथ में होती हैं। और जिन भी स्टेट्स में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, करप्शन से मुक्त है, उन स्टेट्स में आप लेवल ऑफ स्टैंडर्ड देखेंगे लोगों का तो ज्यादा है। इवन वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखेंगे, जहां कहीं पे भी, जिन भी शहरों का, जिन भी गांवों का, जिन भी लोकल इलाकों की जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो गवर्नमेंट्स जितनी ज्यादा एक्टिव होंगी, जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगी, उसका असर लोकल विसिनिटी पे पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत बाद में आती है, पॉलिसी बनाने का काम इन दोनों सरकारों का होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी इन लोगों की होती है।
एग्जाम्पल के तौर पे मनरेगा, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने मनरेगा बनाया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन उस मनरेगा को रूरल इंडिया में इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पंचायत की है, पंचायत इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर किसी गांव की पंचायत प्रधान, अगर वो इंडिपेंडेंट है, वो ऑनेस्ट है, ही और शी इज नॉट इनटू करप्शन, तो आप देखेंगे कि वो उस मनरेगा को अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा, उस मनरेगा का इस्तेमाल करके, उस फंड का इस्तेमाल करके वो अपने गांव का पूरा स्ट्रक्चर बदल देगा। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें कि अगर आपका लोकल जो गवर्नमेंट है वो अगर ऑनेस्ट नहीं है, वो अगर करप्ट है, या उसको आपके लोकल एरिया डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो स्टेट और सेंटर भले ही ईमानदार हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इनके पास होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, जब आपको ये मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट ने ये क्यों बोला कि भाई रूरल या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए पंचायत भी उतने ही जरूरी हैं जितने कोऑपरेटिव्स, क्योंकि रीजन ये है कि गवर्नमेंट जब कोऑपरेटिव्स बनाएगी, बनाने के लिए स्कीम्स लाएगी, कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ा चढ़ा के उसको सपोर्ट करेगी, तो एट द एंड ऑफ द डे इनको मैनेज करने की जिम्मेदारी लोकल लेवल पे पंचायत के पास होगी। ठीक है ना, इनको मैनेज करने की जिम्मेदारी मोस्ट ऑफ द लेवल पे लोकल गवर्नमेंट की होगी। तो इसीलिए पंचायत का होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका कोऑपरेटिव्स का होना जरूरी है, बिकॉज इनके बीच में जब बैलेंस रहेगा तभी आप रूरल इंडिया में वो ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस देख पाएंगे, सोशल और इकोनॉमिक, जो चेंजेस गवर्नमेंट करना चाहती है। तो दैट इज द पर्पस। ठीक है ना, ये एक पर्पस है इंपॉर्टेंट, जिसको हाईलाइट किया गया आपके इस 5 ईयर प्लान। ठीक है, दूसरा काम क्या किया गया, दूसरा काम ये किया गया कि सबसे बड़ी बात थी कि फंडिंग। दूसरा सबसे बड़ा चीज जो कोऑपरेटिव्स के लिए होता है वो होता है फंडिंग। ठीक है, और फंडिंग की जरूरत कहां पड़ती है, फंडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मल्टी पर्पस या क्रेडिट सोसाइटीज में। फंडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मल्टीपर्पज एंड क्रेडिट सोसाइटीज। तो आपके शुरू से ही 5 ईयर प्लान्स में इस तरीके की चीजों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दे प्रोवाइडेड फंडिंग शुरू से ही, सो दैट कोऑपरेटिव्स कैन फंक्शन। ठीक है ना, सो दैट कोऑपरेटिव्स कैन फंक्शन, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल लाइफ जो है, गवर्नमेंट को पहले से पता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, एंड cooperatives are an important means, they are an important means for, they are part of the important means for reorganization of rural life, reorganization of rural life। देखिए, पहला 5 ईयर प्लान है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है आपको बताने के लिए इसमें, क्योंकि जो विजन आएगा इसके ऊपर जब काम होगा तो सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में आपके पास आएगा कि भाई 1953 55 तक आते आते ये चीजें हुई। अभी तो वो चीजें प्रपोज की जा रही है। ठीक है ना, तो इसको जब हम रिव्यू करेंगे, सेकेंड 5 ईयर प्लान जब शुरू होगा, तब वहां से आपको पता चलेगा कि फर्स्ट में हमने क्या अचीव किया और कौन सी चीजों को लेके हम फर्दर आगे बढ़े। प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। ठीक है ना, प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गवर्नमेंट के आने वाले 5 साल के लिए आपकी गवर्नमेंट का क्या विजन है, तो आप नहीं बता पाएंगे। रीजन आपको पता ही नहीं, सरकार को खुद ही नहीं पता। इस बजट में वो कुछ और बोलेंगे, अगले बजट में कुछ और बोलेंगे, उसके अगले बजट में कुछ और बोलेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे कंफ्यूजन रहती है सोसाइटी में। प्लानिंग का फायदा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लानिंग कमीशन में कोई बुराई नहीं है, कोई भी सिस्टम है उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होंगे, लेकिन जब आप इंडिया जैसी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे लिए प्लानिंग जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि आप उसको प्लानिंग कमीशन के थ्रू ही करें, आप उसके लिए और भी मैकेनिज्म बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जैसी डाइवर्स इकोनॉमी के लिए अगर डेटा प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो हम बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमी का सारा खेल आपका डेटा का होता है।
और हमारे साथ आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जेन्युइनली लैक्स डेटा, या गवर्नमेंट के पास जो डेटा है वो पब्लिक फोरम पे नहीं है। पब्लिक फोरम में ना होने की वजह से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज नो आइडिया वेयर दे आर हेडिंग। क्यों ऐसा हो रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं कि भाई पेट्रोल है, अभी आपको समझा दिया गया है कि पेट्रोल के प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो नेशन बिल्डिंग में हो रहा है। लेकिन वो नेशन बिल्डिंग में कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और इस हाई प्राइसेस का आपके रिटेल इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी नॉर्मल लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको समझने के लिए आपके पास कोई डेटा नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल इंडिया, ये पहले से ही तय है कि किस तरीके से हमें रूरल इंडिया को रीऑर्गेनाइज करना है। रूरल इंडिया कैन ओनली बी रीऑर्गेनाइज्ड बाय कोऑपरेटिव्स, और ये गवर्नमेंट ने पहले ही 5 ईयर प्लान में क्लियर कर दिया था। ठीक है, आई गेस टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली रीजॉइन फ्रॉम द सेम लिंक। हम यहीं से अपनी बात आगे करें। ठीक है। Yes,